आपका बहुत बहुत स्वागत इस 10th सीरीज़ में। और इस 10th सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं लाइफ सेटिस्फैक्शन के बारे में। अक्सर ये होता है कि हम लाइफ में कुछ इनकम्प्लीटनेस महसूस करते हैं, किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं। जो हमारी इच्छा होती है, जो क्वेस्ट होता है, दैट रिमेन्स इनकम्प्लीट। फुल सेटिस्फैक्शन लाइफ से हमें नहीं मिलता। जो हमारे पैशन होते हैं, उन पैशन पे वी आर नॉट एबल टू कॉन्कर। So, to start with, we would like to narrate the problems upon which we have gathered here to share our thoughts, our experiences. The problem is that how to get complete satisfaction, a life satisfaction, okay, which always remains incomplete. How to conquer passion. Now for that, today we would like to throw some light upon Atma Samadhan, self-solution. Okay? A clear conscience can solve all your problems. How it can solve the problems? There is a word that I have coined, aims. You know, sense objects. We develop passion for getting sense objects. We need to control that. Higher than sense object is mind. Mind can control your, cravings for sense objects. Something superior than mind is your intellect. Your intellect can control your mind. And something superior than intellect is Atman, your conscience. Conscience can control your intellect. So, for having life satisfaction, you can use this word aims, A, Atman. Below that is intellect. Atman will control intellect, and intellect will control mind, and mind will control your sense objects. Now, similarly, we also fall in our human life. How do we fall? There also you can remember one word, sad. When we are after satisfying our senses, we are always trying to get the sense objects. We are motivated towards it. That creates attraction. उस सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें अट्रैक्शन पैदा होता है, और जब अट्रैक्शन पैदा होता है तो डिल्यूजन्स पैदा होता है. सो सेंस ऑब्जेक्ट्स, अट्रैक्शन, delusion. When we have delusion, then we have anger, krodh. Okay? We have, we are not having it, and so we develop anger. And through anger, there is a destruction. Destruction. So sad at this is the sequence how we fall in our human life. It starts from sense objects, then that leads to attraction, and then attraction
that leads to, delusion, delusion leads to anger, and anger leads to destruction. In a plain and simple manner, I have explained this. Well, about happiness, this is a happiness class. I read somewhere, it's a wonderful book, Power of Money. And in that, the author has said that happiness is equal to results minus expectation. Results minus expectation is happiness. Such a simple thing. So, what we mean is, whatever we get in life, okay, whatever we are able to achieve, we should develop, satisfaction from it. Okay, and when you develop the ability to satisfy yourself, and you are happy with it, then you lose, your cravings for sense objects. It is only when we feel dissatisfied from whatever possessions we have, whatever we have, then we generally start thinking of how to have it, and then we start using wrong means. Okay? So, I'll come in between. We have a wonderful panel today. We would like to hear from them, and this is something which everyone is experiencing. Okay? So, I mean, it's not confined to one individual or a few individuals, but all of us experience this particular problem, that we do not feel fully satisfied from our life. Okay? Now, so let us hear one by one that how can we have, full satisfaction from life, and a variety of answers. When we are able to listen, then of course you can choose that yes, this is a good answer, we must follow this in our day-to-day life, and this might help us in getting full satisfaction from life. So, we have some students also in the panel, we have senior faculty members also, and even in the audience we have students. They can ask questions from this enlightened panel. And so let me start with this problem. Our senior faculty member, Dr. Madhu Bhatta, who is an expert of Sahaj Yoga. Okay? Sahaj Yoga is simplification of the entire thing. Okay? So that gives you a lot of relaxation, and through relaxation, when your mind is relaxed, then you are able to take proper decisions, right decisions. If you are puzzled, if you are confused, then of course you take wrong decisions, and that creates dissatisfaction in your mind. So the route, how to benefit from Sahaj Yoga, on that I would like Dr. Madhu Bhatta from English department to throw some light. Thank you, sir. Hello, everyone. It's very interesting subject, because satisfaction is that we all need, but dissatisfaction we see all around us. Actually, we are human beings, start seeking right from the childhood up to old age. We are seeking something. So when first we try to find this satisfaction comes with the eating of food. So it starts from the eating, how to eat. Then as we grow, all the sensory experiences, they give us satisfaction, and the relationship, love around us, it starts giving us satisfaction. But gradually, this urge, as the child is growing up, then grows, because
he needs the complete development of his personality and also independence. Independence maybe in the financial world also, because first of all, independence means he should be able to have his own earnings. So most of the, because India is a poor country, in our country, most of the attention is directed towards making the career of the children, of the students, because it becomes hard for the to earn money. If they are not earning money, then they become some sort of dependent upon someone. That is never considered something respectful. So the first thing is that they have to learn earning. But in this seeking, sometimes a person goes on clinging to the same kind of, ideas. You see, initially it is needed that we have this satisfaction of earning money. Then a person starts getting greedy, then a good job is found, then next good job is found, then a person starts owning a big property. So this way a person goes on increasing his wants. He's never satisfied. So as sir said, that these material things go on increasing and we are never satisfied. Ultimately, you see, in the what we see in the world around us, in the Western world, there is a lot of money. In America, there is a lot of money. Still, people are not happy. There is no dearth of money. In India, most of their life is spent in earning and seeking money, for average people, not for the rich people. But in Western country, you see, there are so many rich people. They are fed up with the money. They want something else. And what else is that? That is the satisfying relationship with the children, with the parents, with the peers, in the society. Okay, they want to do something good. Later on, this urge to do something good, because when they are dissatisfied from their own children, own society, they want to do something good to the whole world, because only when they are able to help someone in the world, they find satisfaction. That is why the big countries, they are always engaged in the philanthropic work also, and the many rich people also are doing. So this way, we go on seeking something. Ultimately, the most important urge within us is to find the meaning of our life, to find our connection with the divine. That is the highest seeking. And without it realizing, we are trying to find it in many other things, in the self-gratification, material things, having a good car, having a good mobile, having a good property, then going abroad, having trips. So all these things give us little bit satisfactions for some time. Then again we hanker for something else. So the reason is that we are actually hankering for something else. That is the seeking within us to get connected with the Creator, just as a child wants to be connected. You see, we can see the example of a small child. Small child feels completely satisfied when he comes in the lap of his mother. Okay, so that is the child's clinging to mother. In the same way, this soul that has come from the universal soul, it wants to be close to that soul, universal soul, to the divine. So when this connection with the divine is made, there comes a feeling of satisfaction. So that happens only in a meditation, in a meditative mood. Our soul gets connected with the divine. So we start feeling satisfaction gradually coming to us, although we are living in this material world. So the material needs never come to an end. But this satisfaction start coming to us, and we start getting a kind of vision that gives us quite a lot of satisfaction, and we start having good relationship with our family members and in the society, with the world. We start understanding world as a whole family. So this is the only way that I think is the best way to find satisfaction. Thank you, sir. Wonderful. मुझे एक बात कहनी है, वो ये कि जो भी अभी मधु मैम ने कहा, इसको इन्होंने जिया है, और इस सहज योगा के माध्यम से इन्होंने अपने संबंध सुदृढ़ किए हैं, सफलता प्राप्त की है,
और जीवन को सुखद बनाया। न सिर्फ ये, इन्होंने एक अलग तरह की प्रतिभा जागृत की अपने में, जो कि इन्हें खुद पता नहीं था। She is a wonderful painter, and during Corona time only she could discover, when she had to sit all the day at home, she thought of doing some painting, and she has done marvelous paintings. आज हम जो बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि आत्म समाधान, समस्याओं का आत्म समाधान हम कैसे करें। अक्सर हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, माँ बाप पे, नौकरी पे, शिक्षा पे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान आपके अंदर छिपा हुआ है। With a clear conscience, you can solve all your problems, whether it is career, relationship, your living, your health, everything. तो आज हम बात कर रहे हैं कि दिशा और दशा। दिशा का आपको पता है, लेकिन मनोदशा भी उसी तरह से होनी चाहिए, दोनों में तालमेल होना चाहिए। दिशा कहीं और है, दशा कुछ और है। दशा कुछ ऐसी है जो कि उस दिशा को प्राप्त नहीं कर पाती है। और जब हम दशा की बात करते हैं, आपका सिचुएशन की बात करते हैं, तो इसमें माइंड, बॉडी एंड हार्ट, इन तीनों चीज़ों की बात है। ठीक है, तो आपका मन, तन और धन, तीनों चीज़ों की दशा जब ठीक रहती है, तब आप जिंदगी में जो दिशा आपने निश्चित की है उसको अच्छे तरीके से प्राप्त करते हैं। सो देयर शुड बी सम कोऑर्डिनेशन बिटवीन व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू वांट टू हैव, योर एबिलिटीज, योर पोटेंशियल्स, एंड व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। सो बेसिकली मैं आज अपने बच्चों से मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये जो दशा है, आपकी मानसिक दशा, शारीरिक दशा, आर्थिक दशा, इसको कैसे आप सुधार सकते। आपका क्या कहना है इस बारे में कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारी दशा भी, दिशा तो निश्चित है, दिशा हमने तय कर लिया कि दशा में जब तक सुधार नहीं होगा तो आप उस दिशा की ओर नहीं बढ़ सकते, कुछ आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो मेरा आंचल से अनुरोध है कि वो इस बात को बताएं कि आम तौर पे हम कैसे अपनी दशा को सुधार सकते हैं। थैंक यू सर। सर, अकॉर्डिंग टू मी लाइफ सेटिस्फेक्शन हम लोग को अगर चाहिए तो हमें अपनी दिन प्रतिदिन में हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं हमें उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए। सर, मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ में कि जैसे हम लोग कोई भी वर्क कर रहे हैं, छोटा सा वर्क कर रहे हैं, कोई बड़ा वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हमें एक अलग सी हैप्पीनेस मिलती है उसमें कि हाँ अरे ख़त्म हो गया, ये अच्छा हो गया, अब चलो दूसरे काम पे हम लोग करते हैं। तो जब उस टाइम पर जो सेटिस्फेक्शन फील होती है, और फिर अब जब आप रात को आप जब वो करोगे ना, ऑब्जर्व करोगे अपने आप को कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया है, और आपने जो किया है आपने अच्छे से किया है, जितना भी किया है, तो आपको बहुत सेटिस्फाइड फील होगे उस टाइम पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद फिर आपको एक होता है कि आपको नींद भी अच्छी आती है, आपके मतलब पॉजिटिव थॉट्स सारे होते हैं उस टाइम पे। बट अगर मान लो कि आपने पूरे दिन का रूटीन बना रखा है और आपने 2-3 चीज़ें करनी मतलब भूल गए या फिर आपसे छूट गई हैं गलती से भी, तो आप जब उसको ऑब्जर्व करोगे रात में बैठ के तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मैंने किया ही नहीं है, या ये तो मेरा रह गया था। तो उस टाइम पे आप डिससेटिस्फाइड बहुत ज़्यादा फील करते हो। तो आप जो भी काम करो या जो भी आप कर रहे हो उस टाइम पे, तो उसमें अपना बेस्ट दो और जैसे भी करो उसे मन से करो, तो आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिछले जो सीरीज़ थे उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। हमने बात किया कि करेज कैसे डेवलप करें। बहुतों को कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छी बात करने की, कुछ सच बात बोलने की इच्छा होती है, लेकिन हिम्मत नहीं होती अंदर से। दे डोंट हैव करेज। सो हमने कहा करेज का ऑडिट करो।
आम तौर पे हमें एक परेशानी होती है, धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। तो हमें चेक करना है कि हमारे में कितना पेशेंस है किसी चीज़ को के लिए, ठीक है। तो फेल्योर, समटाइम्स फेल्योर जो है वो आपके लिए वरदान साबित होती है। कई लोगों ने कहा है वर्ल्ड ओवर, आप हार्वर्ड से लेके कई बड़े बड़े लोगों का कथन आप सुनिए कि वो कहते हैं कि अगर मैं उस मौके पर फेल नहीं होता तो आज मैं इतना बड़ा आदमी नहीं होता। तो फेल्योर इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। निराश हो जाना अक्सर होता है, इसको कैसे आप हौसला बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है किसी के लिए, विद्यार्थी के लिए या और आगे लोगों के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा, एक हमारे बीच में एक वरिष्ठ प्रोफेसर हैं राजनीति शास्त्र के। राजनीति भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है और राजनीति के बगैर हम समाज में चल नहीं सकते। तो उसकी भी एक अहम भूमिका होती है हमारे लाइफ सेटिस्फैक्शन में। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि व्यक्ति किस तरीके से अपने जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनका कैसे निर्वाह करे वो कि उसे संतुष्टि मिले। क्योंकि इफ़ यू आर एबल टू fulfill all your duties, then that is a great source of satisfaction, and that also gives you a sense of security. मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि अगर आप क्लास में टाइम से आ रहे हो तो कोई टीचर आपको क्लास से बाहर नहीं कर सकता। अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी अच्छे तरीके से कर रहे हो तो माँ बाप आपको घर पे बहुत प्यार देंगे। It is only when you do not do your duties, either in your job or in your profession or while you, as a student, then you invite lot of problems. Okay? एक सिक्योरिटी गार्ड कॉलेज में है, अगर वो टाइम से आता है और जाता है तो वो निश्चिंत है, उसे कोई निकालेगा नहीं, and he is doing his duty perfectly. So these are simple things which if we follow, then we have all the reason to feel satisfied in life, that yes, मुझे जो काम दिया गया था मैंने उसको पूरा किया। तो मैं अपने साथी बलवंत सिंह गौतम से अनुरोध करूंगा कि वो भी बहुत एक लंबा समय अध्ययन अध्यापन में उन्होंने बिताया है और इनके कुछ ठोस अनुभव हैं जो शायद विद्यार्थियों को के लिए बहुत महत्व की चीज़ें हों। तो बलवंत सिंह गौतम। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बारे में मेरा अपना मानना ये है कि इससे ज़्यादा इसको बहुत पॉजिटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। प्रकृति में जितने भी ये पुरुषार्थ होते हैं और पुरुषार्थ से भरे जो काम हैं उसमें अधिकतर लोग वही इसको आगे बढ़ाते हैं जो जिसे असंतुष्ट जो श्रेणी में जिनको रखा जाता है। तो एक सेंस में सेटिस्फेक्शन एक पॉजिटिव शब्द है, लेकिन दूसरे सेंस में इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, दूसरे सेंस में मैं समझता हूँ कि ये इतना पॉजिटिव नहीं है। तो इसलिए सेटिस्फेक्शन जो है वो एक अच्छी बात है जो प्रोफेसर के मिश्रा ने कहा और मैडम ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके इस वर्षन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जो पुरुषार्थ की जो धारणा है, व्यक्ति में निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है और अगर उसमें कुछ कमी रहेगी तो उसके लिए काम करते रहना है। और यही जो और इसके अलावा भी एक और बात है कि ये जो
आत्म संतुष्टि, जिसको आत्म संतुष्टि कहेंगे, आत्म समाधान। समाधान, हाँ। संतुष्टि कहिए, समाधान बात कीजिए। जो आत्म संतुष्टि है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर अपने आप में एक एडजस्टमेंट करती रहती है। तो ये जो है एक अच्छा विषय इन्होंने विषय रखा है, और ये थोड़ा सा मुझे पहले थोड़ा समय देते तो मैं इसमें कुछ और भी नई चीज़ें कुछ निकालता, लेकिन ठीक है गौतम जी, आपने अपनी बात कही और हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन मेरा यह कहना है कि जब आपको अपने कार्य से संतोष नहीं होगा, आप कार्य अच्छा नहीं कर सकते। आप इवन अगर आप अपनी पुरुषत्व को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए भी जो आपके उमंग और उत्साह और जोश, वो तभी आएगा जब आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं। हाँ, एंग्जाइटी होनी चाहिए, पॉजिटिव एंग्जाइटी। पॉजिटिव एंग्जाइटी इज़ नेसेसरी। एग्जामिनेशन है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक संतोष के भाव से कि हम जो कर रहे हैं बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं और हमें जी जान से इस काम को करना है। अगर एक आर्मी में जो देश की रक्षा करता है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो अपने कार्य को क्या करेगा। तो हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान हमारे अंदर ही है, कोई दूसरा हमें नहीं हल कर सकता। तो किस प्रकार से हम अपनी तैयारी करें, अपने तन मन धन तीनों को एक साथ जुट कर करके एक शक्तिशाली पुरुष के रूप में आगे उभर करके आए, और वो संभव है, इसी बात पर विचार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि निधि, ये निधि माथुर है, बहुत ही एक्टिव हमारे स्कूल ऑफ हैप्पीनेस में रही है, a wonderful coordinator, and she is another example who has developed all her talents, by having a right focus, by being dutiful, and by accepting all the responsibility happily. She is a multitasking person, though she is from computer science, but anything she does so well. So that is one example in our school of happiness, when we have seen that by being satisfied in your life, by being happy in your life, your efficiency goes up. You can do lot many things. And जो हमने बात करी कि happiness का मतलब क्या होता है, happiness is equal to returns or results minus expectations. अपनी उम्मीदों को जो आपके रिजल्ट से उसे हटा दीजिए, जो बाकी बचा वो हैप्पीनेस ही है। हम लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दिया तो हैप्पीनेस माइनस में चला जाता है। इतना बढ़िया कॉलेज है, इतने बढ़िया टीचर हैं, इतने बढ़िया दोस्त हैं, अगर हमें उन पर ध्यान नहीं है और सिर्फ ध्यान इसलिए है कि हम आगे किसी और चीज़ को हम कैसे प्राप्त करें, जिसके बारे में भी हमें स्पष्ट नहीं है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें तन मन धन तीनों को संतुष्ट कर देगी, लेकिन हम एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, ऐसी कल्पना में खोए हुए हैं जो स्पष्ट नहीं है। तो निधि माथुर, इनके शब्द बहुत मूल्यवान हैं हमारे लिए, हम सबों के लिए। तो लेट अस नो दैट how has she satisfied herself in her work and life. Thank you so much, sir, and thank you for the praises that you have showered on me. Yes, it's true that whatever work that has been given to me in the college, I have been duty bound, and I have tried my level best to meet everyone's expectations.
हाँ, कभी कभी उस काम को करने के लिए हर्डल्स आई हैं, काफ़ी आई हैं, कभी नहीं भी आई हैं, स्मूथली काम हुआ है, बट हर एक हर्डल को मैंने अपने स्ट्राइड में लिया है और उसको कोशिश की है कि ओवरकम किया है और अपना काम पूरा हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ किया है. So whatever hurdles that I have faced, at the end of the day, I have felt happy that I was I was at least in that particular phase where I was able to meet my target. हालांकि मैंने उसको उस काम को करने के लिए हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया हो, एक दिन के काम में 2-3 दिन लिए हो, बट एटलीस्ट उन हर्डल्स ने मुझे ये आगे के लिए एक सीख दी है, एक चेतावनी दी है दैट अगली बार से मैं ये चीज़ें ना करके इस सोल्यूशन का इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरी तरीके से निकालूं. लाइफ सेटिस्फैक्शन ऑडिट है आज का टॉपिक. लाइफ से सब आई एम श्योर डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं क्योंकि सबको सब चीज़ें नहीं मिलती हैं. आप कितना उसके लिए कोशिश करें, कितना उसके लिए मेहनत करें, आपको ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हमेशा मिले, बट यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. हो सकता है वो चीज़ आज आपके लिए सही हो बट आगे जाके आपके लिए सही ना हो. सो डेस्टिनी ऑलवेज प्लेज इट्स रोल इन एवरीवन's life. I would take Mishra sir's example in the sense that at this stage of his life where he is about to retire tomorrow, I feel that whatever he has thought, he has accomplished and he has achieved to his maximum. And for him, his life satisfaction would be a perfect score. But at my stage where I am at, I have so many things to accomplish. So हाँ, मेरा वो टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है. At this point of time, I would say मैं अपनी लाइफ से उतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ. हाँ, बट मैं अपनी लाइफ को हर एक दिन के हिसाब से देखूं. सो मेरे जो कल तक के टारगेट्स थे वो मैंने पूरे अचीव किए हैं. हाँ, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, बट at the end of my career I would like to see myself in some other position, and I would also like to achieve more for myself and for the institution as well. So thank you, sir. Oh, wonderful. Well, we have someone who is man of few words. The EOC, Equal Opportunity Cell Coordinator, Dr. Naginder Pal. इनके साथ खास बात ये है कि he has a clear conscience. He has a clear conscience, and when he interacts with someone, when he accepts some responsibility, mind, body and soul, his body language also speaks the same thing that his mind speaks. माइंड, बॉडी और हार्ट तीनों से बात करने वाले बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं, और नतीजा ये होता है कि जो लोग में इस तरीके से बात करते हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव एंड दे आर एबल टू ड्रॉ पीपल टुवर्ड्स देम. सो दिस इज द रीजन, व्हाई स्टूडेंट्स, टीचर्स, everyone likes him so much. क्योंकि कहीं कोई दुविधा नहीं है. If he is talking to someone with all sweetness, so by and large, I never find him dissatisfied in life. He is a happy soul. We would like to know that what is the secret of his happiness. थैंक यू सर. सर बहुत कुछ आपसे ही सीखा है किस तरह से हैप्पी रहना है, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ रहकर मतलब जो हमने सीखी है उसी का परिणाम है जो जितना हम सबके साथ खुश रहते हैं और सबका प्यार मिलता है. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लाइफ सेटिस्फैक्शन, जैसे निधि ने भी कहा कि चाहे हम जैसे आप ले लो स्टूडेंट की बात करें या फिर हर एक इंसान जो है वो कुछ न कुछ जीवन में पाना चाहता है. चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे
बच्चे की बात कर ले हम, उससे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे एक्सपेक्टेशंस भी हमारी बढ़ती जाती है। जैसे माँ बाप की जो है बच्चे के साथ एक्सपेक्टेशन होती है, भाई बहन के साथ होती है, अगर एक पति पत्नी की आपस में ये होती है। अगर हम कहीं पर एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो जो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन, अगर हमारा गैप जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो हम शौक उतने ज़्यादा लगते जाएंगे और डिससेटिस्फाइड होते जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में चाहे हम किसी भी लेवल पे हो, चाहे विद्यार्थी पे हो, चाहे हम पति पत्नी के रूप में बाद में शादी करके आ जाएं, या फिर चाइल्ड लेवल पे हो, या हमें सबसे बड़ा जो लाइफ को सेटिस्फैक्शन का जो तरीका है वो है संतुष्टि या फिर संतोष। तो मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि संतोष के साथ मैं अगर एक बात जोड़ दूं तो वो है कि एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। स्वीकार करना कि जिस भी माहौल में हम लोग हैं, जिस भी माहौल में आप लोग हैं, या जैसे भी वातावरण में हम हैं, तो उससे उस जैसा भी हमारा जीवन है हमें उसको स्वीकार करना है। तो उससे क्या होगा कि हमें जीवन में बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि भाई जिस वातावरण में आप हैं उसी में आप रहो। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि संतोष का मतलब ये कि भाई जैसा वातावरण है उसमें हमें उसको स्वीकार करना है। लेकिन हम उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसे कैसे आगे निकल सकते हैं, इसके लिए भगवान ने सबको सब कुछ दिया है। टाइम सबके पास सबको इक्वल दिया है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है या कुछ आपको लगता है तो आप जो है वो सब कुछ आपके पास दिया है तो उसको अचीव किया जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में जो है वो संतुष्ट रह सकते हैं और बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सर ने भी कहा कि भाई जो फेलियर जो होती है वही मुझे लग रहा है सफलता का जो एक की है वो वही है कि जब हम लोग असफल होते हैं तो वही हमें रास्ता दिखाती है और आगे बढ़ाती है। तो जीवन में हमें निराश नहीं होना है बल्कि डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन उस लेवल को हम कैसे कम करेंगे वो हमें पता होना चाहिए, तो हम आराम से आगे बढ़ेंगे। सर थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि किसी से भी आप कुछ क्षणों में आप उसके सीक्रेट को जानना चाहें तो यह असंभव है। आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा कि इनकी कैसी बातचीत होती है, क्या इनको पसंद है, कैसे बात करते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी काम को सहज भाव में कोई कह दे कि भाई ये मंत्र है इस चीज़ का और वो मंत्र आप पालन करें और आप सफल हो जाएं। थोड़ा डिवोट करना पड़ता है। मैंने इतने साल बच्चों को पढ़ाया, बच्चों से पढ़ा। मैंने एक चीज़ देखा कि जो विद्यार्थी क्लास के बाहर मेरे संपर्क में रहा वो बहुत ही ज़्यादा उन्नति किया, वो लाइफ में बहुत अच्छे पोजीशन पर गया। और वो जब बात करता है कि मैं ये बन गया वो बन गया तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को देखता हूँ जो क्लास में टीचर के सामने पढ़े और जल्दी से पीछे से भाग गए, उनका कोई संपर्क नहीं टीचर के साथ, वैसे लोग थोड़ा परेशान ज़्यादा होते हैं। वो कैरियर बहुत अच्छा नहीं बना पाते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो इनफॉर्मल बातों में, जो पर्सनल बातें हैं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करते हो। टीचर अपने अनुभव के आधार पे जो आपके कल्याण के लिए वो प्रेरित रहता है 24 घंटा, तो वो आपको कुछ अच्छे सुझाव देता है, फिर अच्छी बातें होती हैं। तो मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं कि कृपया करके एक बात नोट करिए कि अपने शिक्षक के साथ आप अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करिए, भागिए मत। अगर आप उन भागोगे तो उनसे नहीं सीख पाओगे जितना आपको सीखना चाहिए था। तो मैं इस संदर्भ में फिर एक विद्यार्थी की तरफ लौटना चाहूँगा और यह विद्यार्थी स्पर्श है। ये विद्यार्थी आप में से ही एक है और मैं बता दूं कि पिछले
5-7 कन्वर्सेशन में लगातार ये अपनी विचारों को रखा है और इसकी प्रतिभा हमने देखी और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस तरह का जो रवैया कोई विद्यार्थी अपनाता है तो सफलता उसको होनी ही होती है और सफलता भी सुखद, दीर्घायु, सार्थक। सफलता क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। सफलता सुखद भी होनी चाहिए, मीनिंगफुल भी होनी चाहिए, सार्थक भी होनी चाहिए एंड सानंद एंड लॉन्ग लास्टिंग, दीर्घायु भी होनी चाहिए। ऐसी सफलता। तो मैं इस पर से बात सुनना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है। आप अपने साथियों को, युवा वर्ग को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? बिकॉज ए सेटिस्फाइड सोल इज अ पावरफुल सोल, a dissatisfied soul is a weak soul. So in that respect, how do you think that our students, your friends, can become a satisfied soul in life? थैंक यू सो मच सर। मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया, ये महाभारत से लिया है। युद्ध से पहले जब कर्ण जो थे वो श्री कृष्ण के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तो कर्ण ने श्री कृष्ण को बोला कि आपको पता भी है मेरी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स है। जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मेरे को बास्केट में नदी में बहा दिया, जिस टाइम पे बच्चे को सबसे ज़्यादा मतलब मुलायम हाथों से एक ब्लैंकेट में प्यार से रखा जाता, तब मैं रिवर में बह रहा था। फिर एक सूर्य पुत्र होने के बावजूद मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं मिली, मैं सूत पूत सबने मेरे को कहलाया। गुरु द्रोण ने मेरे को शिक्षा नहीं दी, ऊंच नीच की वो जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। तो बेसिकली कर्ण ने पूरी लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट श्री कृष्ण को सुना दी कि ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, पेन्स है, सफरिंग्स है, आप ही बताओ कि मैं कैसे सेटिस्फाइड रहूँ, बताओ, और मैं कैसे मतलब पांडवों से लड़ूँ। तो श्री कृष्ण ने भी बताया कि मेरी लाइफ तुमसे ज़्यादा अलग नहीं है। जब मैं पैदा हुआ तो जन्म से पहले ही मेरी मौत सामने खड़ी थी। फिर इसके साथ साथ तुमने जैसे बताया कि तुम्हें नदी में बहा दिया, एटलीस्ट वो नदी स्टेबल थी, लेकिन मेरे केस में तो बाढ़ आ रखी थी और मैं बाढ़ में मतलब ट्रैवल कर रहा था, जब उस बच्चे को सबसे ज़्यादा मुलायम हाथों से माँ की ममता में रखा जाता है। फिर श्री कृष्ण ने ये बोला कि तुम्हें कम से कम क्षत्रिय की वो स्किल्स तो दी, क्षत्रिय की वो स्किल्स मिली और मेरे को तो वो स्किल्स भी नहीं मिली। मैं मतलब स्ट्रीम अलॉटमेंट में मैं अपने खुद के पसंदीदा सब्जेक्ट्स भी चूज़ नहीं कर पाया। मैं देखो गांव में गाय वाय इनके साथ, गोपियों के साथ, कहा मेरे को तलवार धनुष के साथ होना चाहिए था, मैं इनके साथ हूँ। तो श्री कृष्ण ने बेसिकली उसे कर्ण को ये समझाने की कोशिश करी कि आपके लाइफ में चैलेंजेस हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए, पेन्स हो गए। जैसे कि मैम ने बोला कि एक परफेक्ट लाइफ एक इल्यूजन होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके लाइफ के हर पिलर में, चाहे वो हेल्थ का पिलर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ का पिलर हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ का पिलर हो, चाहे वो रिलेशनशिप का पिलर हो, चाहे वो कैरियर का पिलर हो, कि सारे पिलर्स जो है वो हमेशा सही रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक इल्यूजन है। परफेक्ट लाइफ इज जस्ट एन इल्यूजन। लेकिन श्री कृष्ण की लाइफ में इतने चैलेंजेस होने के बाद भी हमेशा उनके फेस में एक स्माइल होती थी। So what I think is satisfaction is all about the type, the quality of thoughts you are having in your mind. आप उसे किस पर्सपेक्टिव में देखते हो, किस ढंग से देखते हो। जो कर्ण का था, कर्ण दुर्योधन और शकुनी मामा इनकी संगत में रह के टोटली क्रिटिक और वो नीतियाँ बनाने में और ब्लेम गेम खेलने में कि अर्जुन को तो वो मिल गया, मेरे को तो नहीं मिला। लेकिन श्री कृष्ण जो थे वो इन चीज़ों से दूर रहते थे, उनके दिमाग में हाई क्वालिटी के पॉजिटिव थॉट्स रहते थे। तो बेसिकली अगर आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो तो इसका सिंपल मतलब ये है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके माइंड में वो थॉट्स नहीं हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। सो जस्ट ऑब्जर्व द टाइप ऑफ थॉट्स गोइंग इन योर माइंड। तो अगर आपको मतलब सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आपको थॉट्स ट्रांसफॉर्मेशन पे आना पड़ेगा। आपको उसी सेम सिचुएशन को दूसरे नज़रिए से देखना होगा।
यही उसका सॉल्यूशन है। और अगर आप इस मोमेंट में सेटिस्फाइड नहीं रह सकते, पीसफुल नहीं रह सकते, हैप्पी नहीं रह सकते, तो इसका मतलब आप कभी नहीं रह सकते। एक और स्टोरी सर मैं शेयर कर सकता हूँ। ये स्टोरी मैंने एक बुक में पढ़ी थी। उसमें बताया था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट एक बार ऐसे ही चल रहा था अपने सैनिकों के साथ, तो उस सिकंदर को एक मॉन्क दिखा, तो वो गया मॉन्क के पास, तो कह रहा है अरे भाई क्या कर रहे हो, मेडिटेशन मेडिटेशन मेरे से सीखो, पूरी दुनिया जीतने वाला हूँ मैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तुम्हारे नाम के प्रीफिक्स या सफिक्स में ऐसा कुछ है क्या, कुछ लगाया तुमने, मॉन्क को क्या कर रहे हो ये। तो मॉन्क ने अलेक्जेंडर द ग्रेट से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे को बताओ तुम क्या कर रहे हो। अरे बंद करो ना इसको। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बोला कि मैं पूरी दुनिया जीतने तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उस मॉन्क को बोला कि मैं पूरी दुनिया जीतने वाला हूँ। तो मॉन्क ने बोला अच्छा ठीक है, दुनिया जीतने वाले हो, फिर उसके बाद पूरी दुनिया समझ लो कि तुमने जीत लिया, अब उसके बाद क्या करोगे। तो मॉन्क ने बोला उसके बाद मैं 100 रानियों से शादी करूँगा। ठीक है, मॉन्क ने बोला ठीक है चलो 100 रानियों से शादी कर ली, अब उसके बाद क्या करोगे। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बोला फिर मैं हर एक रानी से एक बच्चा प्रोड्यूस करूँगा। तो मॉन्क ने बोला ठीक है चलो 100 बच्चे हो गए तुम्हारे, अब क्या करोगे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बोला कि मैं हर एक बच्चे को, मतलब जो पूरी धरती, जो पूरा लैंड मैंने कंकर किया है, हर एक बच्चे को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ज़मीन का बंटवारा कर दूंगा, 100 बच्चों को इक्वली सारे लैंड के पीसेस दे दूंगा। मॉन्क ने बोला ठीक है हो गए, वो भी समझ लो कि वो सब तुमने कर लिया, अब उसके बाद फिर क्या करोगे। फिर उसके बाद मैं खुश रहूँगा, फिर मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, फिर मैं पीस में रहूँगा, फिर मैं ऐसे ही काम जैसे आप हो, फिर मैं यही सभी करूँगा। तो मॉन्क ने बहुत ही अच्छी लाइन बोली कि अच्छा तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है, पीस, रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, तो ये आपका अल्टीमेट गोल है। तो ये इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन बनाने की क्या ज़रूरत है कि पहले मैं दुनिया जीत लूँगा, 100 रानियों से शादी करूँगा, हर एक रानी से 100 मतलब एक एक बच्चे करके 100 बच्चे करूँगा, फिर मैं प्रॉपर्टी का बंटवारा करूँगा, और फिर मैं वो काम करूँगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। आ जाओ मेरे साथ बगल में बैठ जाओ, ये दिस इज़ हैप्पीनेस, दिस इज़ सेटिस्फैक्शन, आ जाओ मेडिटेशन करते हैं। तो बेसिकली अगर आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते तो आप लाइफ में कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। एंड सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम द quality of thoughts you are having in your mind. So satisfaction is a state of mind. Wonderful, That's what I wonderful, think. wonderful. Thank you. Well, we would like to hear something from, again, faculty member, Loon, who is a man of few words, but he has always very creative thoughts, and he has one typical quality that he is able to find, anything lacking in certain things. Okay, so he is a wonderful fault finder also. Wonderful fault finder also, critical thinker. Okay, we need that also. So, and I am really very happy that in so many conversations he has expressed his thoughts, and today also he has agreed to share his feelings. So, Loon. Okay, thank you, sir. I think today's topic, life satisfaction. Life, what type of life, right? And when we talk about satisfaction, is it full satisfaction or partial satisfaction? I think that also counts to some extent. And full satisfaction, no doubt, I think nobody will be able to attain it. That is why we are, always looking for that. Otherwise, there will be an ending to that full satisfactions. So I thought that there is no full satisfaction. So if there is no full satisfaction, at least why don't we achieve some partial satisfaction? I think that's the most important in life, I guess. An infant baby will need a milk or, mother. Our satisfactions will also differ, right? And an old man or,
they might need care, love, affection. So, they might go for old age pension home if they do not have that. So the life satisfactions or the satisfaction of infant and old age men is differs. So young men and like adult also again will differ. So there is no one size fits all. So I think we need different type of satisfactions in life also. And as I said earlier, if I am hungry, I will need food. I feel very cold now, I need clothing, shelter, and it's summer, we need AC. So, at least to satisfy something, we can divide, let's say it's like short term or long term. Our objective are also differs, long term objective, short term objective. So at least why don't we try to satisfy something which is easily, attainable, which we could achieve it within a short period of time also. I think that's very important, and it differs also. So, when we talk about life, whose life? It's my personal life. So my personal life satisfaction will differ from years also. So there's no one size fits all. So we need a tailor so that, we could get what we all desire. Our need, our want, our desire all differs. I think that's what I can share. Okay, thank you. What we have been discussing here is जिनको खाना रोटी कपड़ा मकान मिल गया है उसके बावजूद भी डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कि खाने की कमी है। जो भी कॉलेज आया है, जो भी ज़िंदगी में जी रहा है, बेसिक मिनिमम नीड्स उनके पास हैं, स्टिल दे आर डिससेटिस्फाइड इन लाइफ. So our subject matter is that, okay, and here we have ultimate of knowledge, all knowledge, whether it is science, arts, anything, is philosophy. Einstein also became a philosopher at the fag end of his life. Okay, so here also in all our discussion, we have to listen to philosophy. Okay, what is their viewpoint? So we have a brilliant faculty from philosophy department, Archana Jamatia, who has again been devoting so much of time in various conversations. I think in all the conversation she has been present and shared valuable thoughts, valuable thoughts. I am really personally very much obliged for her this kind of contribution. So I again request her to, and the best part with her is that in all the conversations, she has come out with her own personal experience, not from the books, not from the scriptures, not from any theory, but as she lived her life all throughout, whatever she felt, whatever she learned, she has basically shared those things. So Archana Jamatia, again your turn has come. You kindly share your thoughts. Thank you, sir. आपने philosophy के इतना तारीफ तो कर दिया, but I don't know I will be able to say much on this. Satisfaction is very difficult terms कहेंगे या concept कहेंगे या एक notion कहेंगे. Okay. Now, before going to satisfaction, let comes that precedes satisfaction. Gautam Buddha ne, before he got enlightenment, he saw suffering in the world. तो उसे ये लगा था कि जो root cause of suffering है वो desire है. Then it led me into thinking क्या desire इतना बुरा हो सकता है? Okay, let's think about it. Okay, desire. For example, you desire to get good marks. Can it be bad? Okay, you desire to have good spouse in your life. Can that be bad? Okay, क्या desire बुरा हो सकता है?
देन फिलोसॉफिकली अगर आप मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखते हो जो डिस्क्रिप्शन है हाउ द वर्ल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने किसी ने भारत एक खोज देखा है तो उसमें एक गाना शुरू होता है, वो होता है नासादिया सुक्ता, उस पोएम का नाम है नासादिया सुक्ता। तो गाना इस तरह से शुरू होता है, इससे पहले कुछ नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं। तो द फुल पोएम उसका मतलब ये भी है कि देयर वॉज वॉइड, okay, and the supreme being desires something and it is through his desire the world came into existence. तो डिज़ायर का पॉजिटिव रोल भी रहा है इन एवोल्यूशन, इन क्रिएशन, एंड डिज़ायर का नेगेटिव रोल भी है बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग टू मच डिज़ायर इट इज़ लीडिंग यू टू सफरिंग। ओके, नाउ द मोर यू डिज़ायर, जो उन लोगों का रिलेशन है इट इज़ हैविंग इन्वर्स रिलेशन, आपका डिज़ायर ऊपर चला जाता है तो सेटिस्फैक्शन नीचे चला जाता है, देन व्हाट टू डू। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन जो है इट इज़ मेकिंग पीस विद योर सेल्फ, क्योंकि लाइक एवरीवन हैव सेड कि आपका डिज़ायर जो है वो अनलिमिटेड है। यू नो, जैसे सर हैप्पीनेस के तरफ से भी एक मूवी बना है क्वेस्ट अनलिमिटेड, यू विल नेवर एंड टू डिज़ायर। ओके, इकोनॉमिकली ऑल्सो द जो हमारे कमर्शियल दुनिया है वो भी आपको खुश नहीं रखेंगे, यू नो, आपके डिज़ायर पे आपको कभी एंड होने नहीं देंगे। सपोज आपके पास एक छोटा सा बैक पैक है, नो बैक पैक, नॉर्मल सा बैक पैक सबके पास है, देन यू विल नॉट बी हैप्पी विद द बैक पैक, द सिंपल बैक पैक। अगर आप मार्वल के फ़ैन हो, ठीक है, तो आप चाहोगे कि आप एक कैप्टन अमेरिका का बैग लेके आओ ना, आपके पास है बैग बट यू वांट टू गेट अनदर। एंड इफ़ यू आर ए स्मॉल किड, अगर आपको मोटू पतलू का बैग दिख गया then you want that, you are not happy with what you have but you want to take another. So satisfaction is making peace with yourself and drawing the line between need and wants, क्योंकि आपके जो हम जो चाहते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, यू नो, और हमारे जो ज़रूरत है वो इट्स वेरी बेसिक, हमारे ज़रूरत इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकता है। फिर मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस फिर बताऊंगी, जैसे कि लाइक आई हैव दिस फिलोसॉफी ऑफ लाइक सिंपल लाइफ, ओके, सिंपल लाइफ बट नॉट लाइक हाई थिंकिंग तो हुआ नहीं मेरा, तो सिंपल लाइफ में ही रह गया मैं। तो आई यूज़ टू यूज़ बेसिक फ़ोन, हर कोई एवरीवन वाज यूजिंग स्मार्टफोन, मैं ऐसा फ़ोन यूज़ करते थे जहाँ पे व्हाट्सएप भी सपोर्ट नहीं करता था, वहाँ फेसबुक भी सपोर्ट नहीं करता था, बट मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया था एंड दिस कॉलेज इज़ वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो तब जाके मुझे अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ा, आई हैव टू यूज़ एंड्रॉयड स्मार्टफोन। हाँ, ये ज़रूरत था मेरे लिए, क्योंकि अगर आप एजुकेशनली इन्वॉल्व हो देन यू हैव टू हैव चेंजेस, ओके। हाँ, desire नहीं था but I have to change with the time, change with the external kind of factors that is involved. So desire, then in inverse relation that is satisfaction, and how do you balance it? By drawing the line between needs and wants. तो मुझे यही लगता है if we can do that we can make peace with ourselves and be happy. तो मुझे ऐसा लगता है सर। Wonderful. You know, ultimate. As I was expecting her to come out with some ultimate thought. You know, ultimate level of human being is no desire, no complaints. No desire, no complaint is the ultimate. And as a student of economics, let me tell you, there is a difference between desire and need. You need several things. You need education. Everything. I mean, don't confuse it with, you know, need with desire. Okay. But desire is something, you know, which comes as an obstacle. Okay. So as you reduce your desire, your satisfaction level goes up, your happiness level goes up. Wonderful thought that she has said. And you know,
at the last leg of our conversation, our very senior colleague, Dr. Madhu Bhatta, you know, once you are sensitive to nature, and human being is part of nature, okay? When you are painting, then obviously you are visualizing, you know, a nature, and then you are putting it on a piece of paper. Your interaction with human beings वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, आप में जब संजीदगी आती, सेंसिटिविटी बढ़ता है, ठीक है? डॉक्टर मधु भट्टा is blessed with that particular quality, और उसको पता नहीं कैसे इन्होंने डेवलप किया, सहज युवा के थ्रू या कैसे करके, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा इन्होंने आत्मसात किया है उन चीज़ों को, और जिसके कारण से फ्लरिशिंग चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे एसेट्स हुआ, चाहे कुछ भी हो. तो शी रिक्वेस्टेड मी कि मैंने आपके लिए कुछ दो शब्द लिखा है. She has the art of writing poetry also. She is a student of literature. So from that angle, she has written something and she wants to read it out before you. So I don't mind if she reads them out. Okay. Sir, I would request Nidhi, she read better. Please read it. I have sent it to her. Okay, this is like Mishra sir has just said. So this is a poem which has been written by Dr. Madhu Bhatta, and she has dedicated this poem to Professor T.K. Mishra since he is retiring tomorrow. So this is how the poem starts. No one will forget the zest and vigor that you showed and imbued others to spread happiness. Apart from the printed records, you will remain in memories of all those who got the benefits from your words and presence. What a wonderful world you created around you, amidst jealous and unloving, focusing always on the good and precious in others, discovering a hidden talent in all those who came near you, making them valuable and asset for the society. The hectic frenzy displayed in completing tasks made you rich with many new achievements. Displaying soft and tough demeanor, your skilled handling of myriad tasks gave you many raptures of success. May this follow you wherever you go. Thank you. Well, thank you so much. I'm hugely humbled by this kind of feeling, but let me tell you, you know, an old saying is that when a student is ready, teacher is there. When a student is ready, teacher is there. So it is a good student who learns, who responds, you know, whether in the classroom or outside. So the kind of feeling that you have expressed, that shows that you have really been a wonderful student, and you have learned so many things from society, from human beings, from everyone. So that is one thing, one strong message that her poem, you know, sends to all of us, that let us all be sensitive, let us all be close to the nature, okay, and try to improve our own nature. Okay. Thank you all for sharing your thoughts, and really it was wonderful. And as I told you before, that
whatever we share here it directly comes from the heart, own experience, and our strong beliefs. So all that we could see here, indeed a very successful conversation and very important messages we could send across. Thank you all.